Hello, learners. I am Akriti and I welcome you all to English Honors classes. In this particular video, we are going to break down the syllabus of IGNOU undergraduate program and the code of paper is BEGC 106. It is named as Popular Literature. This is something new that I also went through and I found this paper very interesting. So I hope you will learn so much new things in this particular slide and you will be able to know a good amount of things that is going to be helpful in your exam. So here I have presented a presentation in front of you all, and in this particular session I'm going to break down the syllabus for you people so that it becomes easy for you to crack the exam and achieve marks ला पाओ. Okay, so it is termed as popular literature. By the term popular, what do you mean? कोई भी ऐसी चीज जो भारी मात्रा में लोगों को पसंद आ रही है उसे हम लोग पॉपुलर कहते हैं, राइट? तो वैसी लिटरेचर जिसे चाहने वाले लोग ज्यादा हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, my institution English Honors classes provides you a good amount of things, like it is going to provide you a proper guidance in UGC NET, SLET, BET or JET exams, BPSC TRE exam, UG and PG English major courses from Bihar and Jharkhand universities, and no doubt of all the papers of undergraduate and postgraduate courses of IGNOU. If you want any kind of inquiry, you can drop a text on the given number. You can WhatsApp on this number, that is 810-262251. You can visit our website for more knowledge that what are the variety of courses that we are providing. And we are available in Patna in offline mode. You can also connect with us in online mode. Moving forward, the exam of this particular paper is exam date of this particular paper has been announced, that is 15th June 2026. So I will just move with the syllabus structure. As we all know, you all have 4 blocks in this particular paper, which deals with some theoretical introduction, some children's fiction, young adult fiction, sci-fi, detective fiction, then we have some graphic and visual narratives. I hope the things are clear till now. The block 1 is actually named as popular literature and introduction. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पॉपुलर लिटरेचर उसे कहते हैं जो कि भारी संख्या में लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है. तो इस ब्लॉक में हम लोग इसके कुछ मेजर चीजों के बारे में जानेंगे, लाइक जैसे कि इन्होंने दे के रखा है एन इंट्रोडक्शन. So we will try to know what are the things that comes under popular literature, that comes under certain types of literature. There must be other types of literature rather than popular. यूनिट 1 हमारा पॉपुलर लिटरेचर के बारे में बात कर रहा है. यूनिट 2 में हम लोग नोशन ऑफ द कैनोनिकल एंड द पॉपुलर के बारे में बात करेंगे. द टर्म कैनॉन, किसी भी राइटर का कोई वर्क जो कि बहुत लंबे समय से हमारे साथ है और उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है दिन पे दिन, तो हम उन्हें कैनोनिकल राइटर कहते हैं या फिर द लिटरेरी कैनॉन ऑफ अ पर्टिकुलर राइटर कहते हैं. Then we will explore academic and critical approaches of popular literature. पॉपुलर लिटरेचर टुडे, आज के समय में जो भी लिटरेचर पॉपुलर है हम लोग उस पर भी बात करेंगे. एक टर्म से आप इस ब्लॉक में रूबरू होंगे जिसका नाम है हेजिमनी, जिसे एक बहुत ही महान लेखक ने दिया है, एंटोनियो ग्राम्स्ची, विच मीन्स कि जब कोई पावरफुल आदमी किसी पे रूल करे. By the term आदमी, it does not mean a person. When a country with power rule a country with less power, we can say rule with knowledge, yeah, rule with capital, yes. Moving forward to block 2. Okay, before moving, I would just like to pose a question. What makes a book popular instead of academic?
Do try to answer this after you are done with the syllabus. You will also learn about serious literature, popular literature, and many more things in this popular blog. And I would recommend you all to go through this blog, not line by line, but you can skim or scan the most important parts. The blog 2. Blog 2 talks about genres of popular literature. What is genre? टाइप्स ऑफ वैरायटी को हम लोग लिटरेचर में जॉनरा बोलते हैं, लाइक रोमांस, ट्रेजेडी, रिवेंज, देन ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ हमें दो तरह की जॉनरा के बारे में पढ़नी है. जॉनरा ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, दैट इज चिल्ड्रन लिटरेचर एंड यंग अडल्ट फिक्शन. अगेन द यूनिट 1 टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बेसिक चीज जानेंगे कि चिल्ड्रन लिटरेचर एक्चुअली होता क्या है. आफ्टर दैट यहाँ पर एक book mentioned है, Through the Looking Glass, a detailed analysis. Through the Looking Glass एक बहुत ही important writer है, लुइस कैरोल, उनका लिखा हुआ है ये किताब. हालांकि ये बोला जा रहा है कि ये चिल्ड्रन लिटरेचर है, but it is a massive critique of Victorian rules, school systems, and how children are punished and are forced to reform. एक बच्चे के साथ स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में जो भी ज़्यादती की जाती है, उस पर ये बहुत ही भारी क्रिटिक है. आफ्टर दैट इन यूनिट 3 यू विल लर्न अबाउट यंग अडल्ट फिक्शन. अगेन एन इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, आप उसे ज़रूर पढ़ें, वो आपको आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. और यहाँ पर हमें एन इंट्रोडक्शन राइटिंग फ्रॉम श्रीलंका. श्रीलंका के एक राइटर हैं श्याम शिलवदुराई, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की चीज़ है फनी बॉय, उसके बारे में हमें यूनिट 4 में पढ़ना है. यहाँ हम लोग जेंडर नॉर्म के ऊपर बात करेंगे कि एक लड़का जो कि अपने जेंडर नॉर्म के पीछे बीच में रह के फंस गया है. द बॉय सफर्स आइडेंटिटी क्राइसिस. व्हाई? बिकॉज ही डज नॉट फिट इनटू द जेंडर नॉर्म्स that is set for a male by the society. He suffers from identity crisis. This novel can be said of coming of age novel क्योंकि ये बहुत ज़्यादा contemporary topic है जिस पे ये बात कर रही है. And what happens, क्या होता है जब आप सोसाइटी के बिठाए हुए आंकड़ों पर सही नहीं बैठते हो, and all that measurements done by society, when you don't fit into that measurement that is done by society for you, what are the repercussions and what are the results that you are going to read in this particular unit. Okay. So moving forward to block 3. Block 3 says genres of popular literature 2, detective and science fiction. तो यहाँ हम लोग चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे, then science के साथ थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो यूनिट 1, क्राइम एंड डिटेक्टिव फिक्शन एंड इंट्रोडक्शन. अगेन एक बैकग्राउंड आपको मिलेगा यहाँ पर कि आखिर क्राइम फिक्शन क्या होता है, डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है, फिक्शन क्या होता है. फिक्शन समथिंग दैट इज इमेजिनरी इन नेचर, विच इज नॉट रियल. ठीक है, फिक्शन का मतलब भी होता है जो कि बनावटी है. और ठीक उल्टा अगर हम लोग चले जाए नॉन फिक्शन पे, तो नॉन फिक्शन कुछ वैसा होता है जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित होती है. तो यूनिट 1 में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं. एंड देन यूनिट 2 में एक राइटर है अगाथा क्रिस्टी, जिनकी बहुत ही फेमस बुक है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्योर्ड, जिसमें उन्होंने एक डिटेक्टिव कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, हरक्यूल पॉयरोट. उसकी हेल्प से हम लोग कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक. आई वुड रिकमेंड कि आप इस बुक को एग्जाम के बाद अच्छी तरीके से पढ़ें, बहुत ही अच्छी तरीके से, इन डेप्थ. ओके, हियर दे विल सॉल्व अ मर्डर मिस्ट्री बाय अ डिटेक्टिव नेम्ड हरक्यूल पॉयरोट. इस किताब को हम लोग क्लासिक बोलते हैं. ठीक है, something that holds great value. Next, in Unit 3, you will learn about science fiction and introduction. साइंस फिक्शन क्या होती है, उसकी बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानेंगे. एंड यूनिट 4 में उर्सुला के ले ग्विन की एक वर्क है, द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास. The Ones Who Walk Away from Omelas is a short story that is set in a utopian city. What is utopian city? Utopian city again एक अनरियल सी जगह है, एक आइडियल प्लेस है, इमेजिनरी प्लेस है, जहाँ पे हर एक चीज बहुत ही ज्यादा सलीके से चल रही होती है, जो कि आम जिंदगी में नहीं होता है.
चीजों का इधर उधर होना लाजमी है, बट एक यूटोपियन सिटी में क्या होता है, सारी चीजें अपने जगह पर होती हैं। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी वर्ल्ड, अनरियल सिटी। तो ये वहां पर सेट है और हम लोग इसे वहां पढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू ब्लॉक 4 एंड द लास्ट ब्लॉक ऑफ दिस पेपर, it is named as genres of popular literature 3, graphic and visual narrative। तो हमने अब तक पॉपुलर लिटरेचर के काफी सारे टाइप्स देख लिए हैं, और ये है हमारा ग्राफिक एंड विजुअल। ग्राफिक एंड विजुअल। So the first unit talks about experiences of untouchability by भीमा याना। मैं एक बार पूरा नाम बोलूंगी राइटर के साथ। भीमा याना, एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम। इनके राइटर हैं दुर्गाबाई व्याम एंड सुभाष व्याम। इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ विद द इन अ ग्राफिक नोवेल हम लोग बी आर अम्बेडकर की एक बायोग्राफी देखेंगे। बी आर अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जो कास्टिज्म पे बात करें, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को काफी हद तक खत्म करने की कोशिश करी। तो इस ग्राफिक नोवेल में हम लोग उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे विद द यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्रधान गोंद आर्ट। ठीक है, The Unit 2 talks about graphic narratives, analyzing Vyam's Bhimayana. That means in the Unit 2, you are not going to read any new text, but आप लोग experiences of untouchability, जो कि एक ग्राफिक नोवेल है, बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की जीवन की कथा किसी और के द्वारा लिखी गई हो, उसे हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। तो उसी को हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे यूनिट 2 में। आफ्टर दैट इन यूनिट 3, लिटरेचर एंड सिनेमा एंड इंट्रोडक्शन। काफी सारे लिटरेचर के पीस को कई सारे डायरेक्टर ने सिनेमा का रूप दे दिया है। वो सारी चीजें कैसे चलती हैं उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। और साथ ही यूनिट 4 में रस्किन बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी है द ब्लू अम्ब्रेला, जो कि विशाल भारद्वाज ने उसे फिल्माइज किया है, उस पर एक मूवी बनाई है। तो हम लोग इसके हेल्प से उसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ द स्टोरी मूव्स फ्रॉम पेज टू द स्क्रीन, और उन सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट हाउ स्टोरी चेंजेस फ्रॉम पेजेस टू स्क्रीन, एंड how that beautiful girl named Binya and her blue umbrella is trying to take the limelight. So that's it for the syllabus. I hope I have given you a better idea that what you all have to do. एक बार मैं फिर से बता दूं, नोवेल्स के लिए आप इन डिटेल समरी जाइए, एनालिसिस कीजिए, थीम्स पे बात कीजिए, कैरेक्टर्स पे बात कीजिए। शॉर्ट स्टोरीज के लिए भी उसकी प्लॉट के ऊपर एक अच्छी खासी बात कर लीजिए, उसकी समरी देख लीजिए। शॉर्ट स्टोरीज है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। यू हैव अ फ्यू डेज स्टिल लेफ्ट, तो आप लोग शॉर्ट स्टोरीज आराम से पढ़ सकते हैं। अदर देन दैट, आप अपने इग्नू के कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ताकि while writing answer you don't get lost कि अब मुझे क्या लिखना है। I will try to discuss a PYQ with you all। मैं बस बताना चाहती हूँ कि अगर आप उस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कैरेक्टर्स, थीम्स, प्लॉट, एनालिसिस, समरी, तो you will be able to complete your paper in a good way। Just a second. There is some network issue, that's why it's taking time। Okay, so as you can see, ये paper December 2025 की है, that means the last cycle only। Write short notes on any four of the following in 100 words। Ideology, बेसिक आइडियोलॉजी क्या होती है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि आपको इंट्रोडक्शन यूनिट ब्लॉक 1 में ही आपको इसका जवाब मिलेगा। दूसरा, चिल्ड्रंस लिटरेचर क्या होता है, देन व्हाट आर हार्ड बॉइल्ड नोवेल, देन mahjong, न्यू वेव साइंस फिक्शन, हेट्रोटोपिया। हेजिमनी मैंने बताया था, हेट्रोटोपिया मैंने नहीं बताया था, दैट इज योर होमवर्क टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। देन सेक्शन बी, आपको ऑप्शंस कितने दे रखे हैं यहाँ, 100 मार्क्स की पेपर है, 6 ऑप्शन है जहां आपको केवल 4 पे शॉर्ट नोट लिखना है, दैट मीन्स इट इज गुड, घाटे का सौदा नहीं है। इन सेक्शन बी यू हैव टू अटेम्प्ट
only 2 questions in 250 words that will carry 10 and 10 marks, that is 20. How does the language of cinema convey meaning in the blue umbrella? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा पूछ रहा है कि सिनेमा आखिर शॉर्ट स्टोरी को कैसे दर्शा रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है. ठीक है. Explain the significance of Mahad Satyagraha in Bhimayana. It is talking about that B.R. Ambedkar की biography, graphic novel. उसको जब आप summary पढ़ेंगे, you will be able to answer this question also. Then, how would you explain the existence of miserable child in the ones who walk away from Omilas? The one who walk away from Omilas is about this child only, कि उसकी perpetual misery की वजह से कैसे लोगों की खुशी उस पर depend होती है. तो अगर आप उसका भी एक इन डेप्थ समरी पढ़ लेते हैं, you will be done with this question also. Then what is hard science fiction? Elucidate. The block 1 of this particular paper will solve your this question also. Then section 3 consists of too many questions again, and it has only asked you to answer only any 3 questions in about 500 words. So the पहला सवाल है, attempt a critical appreciation of narrative technique in murder of the murder of the robber Akyord by Agatha Christie. I said कि अगर आप in detail summary और analysis पढ़ लेते हैं, बहुत सारी questions आपकी ऐसे ही solve हो जाएंगी. So you have to do the critical appreciation here. Is there a difference between crime narrative and detective fiction? Very simple question. Write a detailed note on gender and sexuality in Funny Boy. श्याम शिलविदुराई की ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए एंड यू विल गेट अ गुड नॉलेज अबाउट दिस एंड यू विल बी able to answer this particular question. Then trace the evolution and development of young adult, I guess यहाँ fiction होना चाहिए, and give examples. Again बहुत ground level की question है ये, आप introduction वाला part पढ़ेंगे तो you will be able to answer this also. Discuss the role of Humpty Dumpty in Through the Looking Glass. Characterization. Discuss Bhimayana as a graphic novel. Just what is graphic novel, and when आप जब भीमायाना का in depth summary पढ़ेंगे, आप इस सवाल का भी जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे. So that's it from my side. I wish you all the very best for your paper, and thank you for listening. And stay connected to English Honors classes on YouTube and Telegram. And if you have any query, you can drop your query on the given number below. Thank you.